A very good morning, my dear students. My name is Vivas Tiwari and I welcome you all. We are studying class 10th Social Science Lesson 15 People's Participation in Democracy, and today the topic is pressure groups. Pressure groups. Open in your book page number 217, and just a reminder, you will read from your book, not from the screen. If you have books, then if you do not have the book, then only you should read from the screen. Read along with me as you will get in the interpretation of your book. Today it is 2nd of January 2022, Sunday. Let's something new today. चलिए आज हम कुछ नया सीखते हैं. गेट रेडी विथ पेन एंड पेपर. प्रेशर ग्रुप, पेज नंबर 217. प्रेशर ग्रुप यानी यहाँ पे दबाव समूह. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड what a pressure group is and the role it plays in a modern democracy from the following incident. आइए एक घटना के माध्यम से दबाव समूह की प्रकृति और आधुनिक लोकतंत्र में इनकी भूमिका को समझने का प्रयास करें. In 1984, the Karnataka government set up a company called Karnataka Pulpwood Limited (KPL) and granted it a 40-year lease on 30,000 hectares of land. 1984 में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक पल्पवुड लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई और उसे 30,000 हेक्टेयर जमीन 40 सालों के लिए दे दी. This land was part of the village commons, the pasture land where the villagers traditionally grazed their cattle and other farm animals. उस जमीन का इस्तेमाल किसान अपने पशुओं के लिए चारागाह के रूप में करते आ रहे थे. The company began planting eucalyptus on this land to get pulp for making paper. कंपनी ने उस जमीन पर नीलगिरी के पेड़ लगाने शुरू किए. इन पेड़ों का इस्तेमाल कागज बनाने की लुगदी तैयार करने के लिए किया जाना था. But the farmers got together to launch a movement to save their common lands. लेकिन क्या हुआ था, पहले से ही जैसे आपको मैंने कहा कि जमीन पर नीलगिरी के पेड़ कंपनी ने लगाने शुरू किए और इन पेड़ों का इस्तेमाल कागज बनाने की लुगदी तैयार करने के लिए किया जाना था. लेकिन 1986 से किसान और राज्य के जाने माने लेखक और पर्यावरणविदों ने मिलकर सामुदायिक जमीन बचाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया. They were supported by many well-known writers and environmentalists from the state. जैसे आपको मैंने अभी बताया कि जहाँ सामुदायिक जमीन को बचाने के लिए राज्य के किसान, लेखक और पर्यावरणविद यानी इन्वायरमेंटोलॉजिस्ट या इन्वायरमेंटलिस्ट सबने आंदोलन शुरू किया. The farmers presented a memorandum to the state government and its chief minister, but when there was no response, they filed a petition in the Supreme Court.
उन्होंने सरकार और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और उनके द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। द एपेक्स कोर्ट passed an order to retain the status quo as it existed before the lease was granted. सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पहले जैसी यथास्थिति बनी रहे। But the villagers did not get their common lands back in spite of court's order. लेकिन इसके बावजूद जमीन गांववासियों को नहीं मिला। So they launched a satyagraha in a village called Kunsur in 1987 that came to known as Kitiko, Hachiko, uproot and plant सत्याग्रह। फिर जैसे गांववासियों को जमीन नहीं मिला ना, तो गांववासियों को जमीन ना मिलने पर 1987 में कुनसूर नामक गांव में सत्याग्रह शुरू किया गया, जिसका नाम था किटिको हचिको, अर्थात उखाड़ो और रोपो, uproot and plant. During the satyagraha, the farmers uprooted the eucalyptus saplings and in their place planted fruit and fodder plant saplings that were useful to the villagers. इसमें लोगों ने नीलगिरी पेड़ उखाड़कर उनकी जगह पर ऐसे पेड़ों के पौधे लगाए जो जनता के लिए फायदेमंद थे। The activists then won the support of 70 state legislatures who put pressure on the government to shut down KPL. आंदोलनकारियों ने क्या हुआ, विभिन्न तरीकों से विधायकों को अपना पक्ष समझाया और विभिन्न दलों के 70 से अधिक विधायकों ने सरकार पर दबाव डाला कि इस कंपनी को बंद करे। The movement forced the government to bow to the wishes of the villagers and the company was shut down in 1991. इस आंदोलन के कारण सरकार को किसानों की मांग माननी पड़ी और 1991 में कंपनी को बंद करना पड़ा। In this example, the movement launched by the villagers and intellectuals acted as a pressure group to force the government to change its policies. ऊपर की घटना में किसानों व बुद्धिजीवियों के आंदोलन ने एक दबाव समूह के रूप में कार्य किया। इस आंदोलन ने सरकार पर दबाव डालकर उसकी नीति को बदलने पर मजबूर कर दिया। So we can say that a pressure group helps to protect the interest and rights of specific social group by putting pressure on the government to change its policies. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दबाव समूह विशेष समूहों के हितों की रक्षा के लिए सरकार को प्रभावित करने का प्रयास करता है। These groups use constitutional methods such as presenting memorandum to the government and filing petitions in the courts, along with propaganda, strikes and demonstrations to achieve their objectives. अपने हितों की प्राप्ति के लिए ये समूह ज्ञापन और न्यायालय में याचिका जैसे संवैधानिक साधनों के साथ साथ प्रचार, हड़ताल, प्रदर्शन आदि भी करते हैं। So a movement is a pressure group. आंदोलन एक प्रकार का दबाव समूह है। It is usually an informal organization.
There are many other kinds of pressure groups that are formal organization, such as the chambers of commerce and industry. अब जैसे आपको मैंने कहा, आंदोलन एक प्रकार का दबाव समूह है और अन्य प्रकार के दबाव समूह भी होते हैं जो नियमित संगठन का रूप ले लेते हैं, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, these chambers are organizations of merchants and industrialists that place their demands before the government and seek to influence government policies in their favor. चैम्बर, अब जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जो कि व्यापारियों व उद्योगपतियों का संगठन है, जो मुख्य रूप से इनके लिए अनुकूल नीतियां बनवाने, अलग अलग उद्योगों के हितों व ज़रूरतों को सरकार के सामने रखने का काम करते हैं। There are many such organizations to protect the interest of professional groups like doctors, lawyers, teachers, etc. इस तरह कई और संगठन होते हैं जो विशिष्ट व्यवसाय के लोगों के हितों के लिए काम करते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील आदि। There are also organizations that do not represent any special interest group. कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो किसी वर्ग विशेष के हितों की बात ना करके बात नहीं करते हैं। They put pressure on the government on issues of public concern such as the environment, education, health and foreign policy. जैसे आपको मैंने कहा, कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो किसी वर्ग विशेष के हितों की बात न करके पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय नीति आदि मामलों पर सरकार पर दबाव डालते हैं। They publish books and conduct research studies on these subjects and discuss their findings with government officials, ministers and people's representatives to try and influence them. वे इन मुद्दों पर पुस्तक आदि प्रकाशित करते हैं, उन पर अध्ययन करते हैं और सरकारी अफसर, मंत्री और जनप्रतिनिधियों से अपने विचारों के बारे में गहन बातचीत करते हैं। Their experts are usually nominated on committees appointed by the government to look into these issues. और अक्सर सरकारी नीतियों को बनाने के लिए जो समिति बनती है, उनमें ऐसे संगठनों के प्रतिनिधि सदस्य बनाए जाते हैं। In addition to all these organizations, there are also professional lobbyists whose services are hired by groups who want to influence government policies on specific issues. इसके अलावा विशिष्ट मुद्दों पर सरकारी नीतियों को बदलने के उद्देश्य से कोई समूह कुछ व्यावसायिक लॉबिस्ट का उपयोग करते हैं। So, democratic systems have different kinds of pressure groups ranging from social movements to commercial lobbyists. इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकतंत्र में विभिन्न हित समूह अपने पक्ष में नीतियां बनवाने और क्रियान्वयन के लिए जन आंदोलन से लेकर व्यावसायिक लॉबिस्ट तक विभिन्न प्रकार के दबाव समूह बनाते हैं। Now, my dear students, the question for you: what methods did the farmers of Karnataka use to fight for their demands? कर्नाटक के किसानों ने अपनी मांग को मनवाने के लिए
क्या क्या तरीके अपनाएं। Have you come across any pressure group in your area that had opposed any government project? Give examples. आपके क्षेत्र में क्या आपने किसी दबाव समूह द्वारा सरकार के किसी कार्य का विरोध करते हुए देखा है? एक उदाहरण दीजिए। Now the next topic is प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। दबाव समूह एवं राजनीतिक दल। पॉलिटिकल पार्टीज आर पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस। अब राजनीतिक दल भी लोगों का संगठन होता है। दे also try to influence government policies and projects। उसका संबंध भी सरकार को प्रभावित करने के लिए होता है। सो इन अ वे दे एक्ट एज प्रेशर ग्रुप्स। इस प्रकार राजनीतिक दल भी दबाव समूह होते हैं। बट इज इट करेक्ट टू लेबल देम एज प्रेशर ग्रुप्स? लेकिन क्या यह कहना ठीक होगा कि वे भी एक प्रेशर ग्रुप या दबाव समूह हैं? पॉलिटिकल पार्टीज डिफर फ्रॉम प्रेशर ग्रुप्स इन वन इम्पॉर्टेंट रिस्पेक्ट। वास्तव में ऐसा नहीं है। Their main objective is to come to power to form a government। राजनीतिक दलों से दबाव समूह इस अर्थ में अलग होते हैं क्योंकि राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति या सरकार बनाना होता है। A pressure group, on the other hand, does not seek power but only seeks to influence the government to fulfill its objective। जबकि दबाव समूह का उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति नहीं होता है बल्कि सरकार को प्रभावित करके अपने कार्य करवाना होता है। On the basis of the earlier discussion, we can list the following characteristics of a pressure group। अब ऊपर की गई चर्चा के आधार पर हम देख सकते हैं कि दबाव समूहों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अ प्रेशर ग्रुप डज नॉट सीक पावर। दबाव समूह सत्ता प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं। अ प्रेशर ग्रुप इज फॉर्म व्हेन पीपल गेट टुगेदर टू परस्यू कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, राइट्स, व्यू पॉइंट्स और प्रोफेशनल इंटरेस्ट। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब पेशे, हित, आकांक्षा और मत के लोग एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट हो जाते हैं। अ प्रेशर ग्रुप सीक्स टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर्स टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। दबाव समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं। अ प्रेशर ग्रुप uses various methods to achieve its objectives, including media communications, demonstrations, workshops and meetings, publications, lobbying, etc। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये समूह प्रचार प्रसार, प्रदर्शन, गोष्ठी, आंकड़े प्रकाशित करना, लॉबिंग आदि करते हैं। Now the next point is the role of a pressure group in a democracy। लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका। A pressure group that represents the interest of a specific class or group may not appear to be the best thing for a democracy। ऐसा लग सकता है कि किसी एक ही तबके के हितों की पैरवी करने वाले दबाव समूह लोकतंत्र के हित में नहीं है। Which tries to protect the rights and interest of every member of society। लोकतंत्र में किसी एक तबके का नहीं बल्कि सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए। Such a pressure group may also appear to use its power to achieve its own purpose without taking responsibility for its actions। यह भी लग सकता है
कि ऐसे समूह सत्ता का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं. So, in a way, a pressure group is not answerable to the people, unlike a political party that has to face the electorate every time there is an election. राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये समूह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते. It is also possible that a pressure group is supported by very few people but has enough money and resources to alter public opinion through propaganda to achieve its narrow agenda. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दबाव समूहों को बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त हो, लेकिन उनके पास धन ज़्यादा हो और इसके आधार पर अपने संकुचित एजेंडे पर वे सार्वजनिक बहस का रुख मोड़ने में सफल हो जाए. However, despite such shortcomings, pressure groups and social movements strengthen democracy. इन आशंकाओं के बावजूद यह माना जाता है कि दबाव समूहों और आंदोलनों के कारण लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं. People should have the right and opportunity to put pressure on a government using all possible legal and constitutional options. Such pressure on the government is a positive feature that keeps a democratic system healthy. And if many such special interest groups representing different classes in society are active, no single group can establish its dominance in a democracy. जैसे आपको मैंने कहा अभी कि यहाँ पे वर्ग विशेषी हित समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इस पैराग्राफ में वर्ग विशेषी हित समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. जब विभिन्न समूह सक्रिय हो तो कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं रख सकता. यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह इसके प्रतिकार में दबाव डालेगा कि नीतियाँ उस तरह से ना बनाई जाए. There are also instances of governments being influenced by a few wealthy and powerful people for their own selfish interest. अब क्या होता है कि जैसे आपको मैंने कहा कि दबाव समूहों और आंदोलनों के कारण लोकतंत्र की जड़ें तो मजबूत हुई है और शासकों के ऊपर दबाव डालना लोकतंत्र में कोई अहितकर गतिविधि नहीं, बशर्ते इसका अवसर सबको प्राप्त हो. लेकिन सरकारें अक्सर थोड़े से धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती हैं. Public pressure and movements play an important role in countering such unethical pressure. अब जन साधारण के दबाव समूह तथा आंदोलन इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं. They also make the government aware of the needs and aspirations of the common people. और आम नागरिक की जरूरतों तथा सरकारों से सरकार को अवगत कराते हैं. The government also gets to know what people belonging to different sections of society want. अब सरकार को भी ऐसे में पता चलता रहता है कि समाज के विभिन्न तबके के लोग क्या चाहते हैं. It can then try to strike a balance by seeking a consensus between conflicting interests.
इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बैठाना और शक्ति संतुलन करना संभव होता है. So, my dear students, this is sufficient for this video lesson. In next video lesson, we will continue with our topic democracy and organization. Right? Till then, I study hard, revise all your lessons, and I say goodbye to you.